صاحب آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، کیسا دیکھتے ہیں اس پچھلے 24 آور کو پاکستان کے اوپر؟ جی بالکل کڑیاں مل رہی ہیں اور جو جال جیسے بچھایا جا رہا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ویسے ہی اتفاقاً یہ نہیں ہوئی، یہ ساری پلانڈ ہے، سنکرونائزڈ ہیں، کوآرڈینیٹڈ اور ویل کیلیبریٹڈ ہیں، اور اس میں جو مہرے ہیں وہ ایک طرف انڈیا ہے، ادھر سے افغانستان ہے اور پھر ادھر اسرائیل ہے۔ یہ تینوں پاور جو ہیں، یہ جو پاکستان کے خلاف جو یہ کہ انہوں نے ایک دائرہ گھیر بنا لیا ہے اور مختلف طریقے سے یہ وار کر رہے ہیں، یہ تینوں جو ہیں پاکستان کے دشمن ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان ہے وہ مسلمان ملک ہے، اور اس نے گٹس جوڑ کس کے ساتھ کیا ہے کہ دونوں جو ایک ایکسٹریمسٹ ملک ہیں جنہوں نے کہ پوری دنیا کے پیس اور امن کو جو ہے نا بالکل تہوالہ کر دیا ہے، ایک طرف وہ جنوسائڈ غزہ میں کر رہے ہیں اور ادھر وہ کشمیر میں کر رہے ہیں، اور ان کا جو سٹانس مسلم کے خلاف اوورآل ہے، ان کے ساتھ جو ہے یہ جو اپنے آپ کو اسلامک ایمریٹ کہتے ہیں اور شریعہ کی یہ بات کرتے ہیں، یہ ان کی گود میں جا کے یہ بیٹھ کے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ جو ہے افسوسناک اور خطرناک بات بھی ہے۔ تو ابھی آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ واقعات کیا ہوئے ہیں، ابھی آپ دیکھیے کہ کل 5 بجے جو ہے وانا کیڈٹ کالج میں جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے دہشت گرد کا، اور پہلے تو تھا کہ بھائی یہ لڑکیوں کے اسکولوں کے خلاف تھے، ان کی ایجوکیشن کے خلاف تھے، تو یہاں تو یہ لڑکیوں کا اسکول نہیں تھا، یہ تو لڑکوں کا اسکول تھا، 8ویں 9ویں 10ویں کلاس کے یہ کیڈٹس تھے، اور وہ سب اسی کے علاقے کے لوگ ہیں جو کہ محروم ہیں اور محرومیاں ہیں، اور ان کی ایجوکیشن بھی پوری ہو رہی ہے، یہی جو ہے آپ کے فوجی افسر بن رہے ہیں اور بہترین کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، اور کئی بیچ میں شہید بھی ہوئے ہیں۔ تو وہاں ہوا، اور 1 گھنٹے کے بعد ہی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پر دہلی میں جو ہے ایک بلاسٹ ہو گیا، اور ابھی بلاسٹ کی جو ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے نا یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہوا، سب کہہ رہے ہیں کہ گیس پھٹا، اور وہاں سے انہوں نے ایک اپنا نیریٹو داغ دیا کہ جی یہ پاکستان ہے، اور جیش ان کو ملی ہے، ہر جگہ جیش کو فٹ کر دیتے ہیں، پہلے لشکر طیبہ کو جو ہے نا وہ ہر جگہ میں ڈالتے تھے، اور ظاہر ہے ISI کو بیچ میں یہ ڈالتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو فالس فلیگ آپریشن کی جو بات کر رہے تھے کہ جی اس طرح ہم نے سمندر کے راستے سے جو ہے نا کوئی کارروائی کرنی ہے، اور یہ تھا کہ وہاں سے کوئی فالس فلیگ آپریشن ہوگا، وہ جو ایک فشر مین بھی جو یہ پکڑا گیا کہ وردیاں وہ لے رہا تھا، تو وہ انہوں نے اب یہ ایک کر دیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ مئی کی جو ہزیمت اٹھائی انڈیا نے، اور وہ خفت آج تک وہ مٹا نہیں سک رہے، اور یہ ان کے لیے جو ہے ایک سب سے بڑا عذاب یہ بن چکا ہوا ہے۔ تو مئی سے انہوں نے جو ہے اپنی جنگی تیاریاں جو ہیں وہ یہ شروع کی ہوئی ہیں، اور وہ ہر لحاظ سے اپنی جتنی بھی کمی بیشی ہے ملیٹریلی وہ اپنی طرف سے جو ہے پورا کرنے کی کوشش کریں، یعنی ٹینجیبل فیکٹرز جو ہیں وہ ان کو وہ یہ پورا کر رہے ہیں کہ شاید اسی سے جو ہے ہم جنگ یہ جیت جائیں گے۔ اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ جی اس پہلی دفعہ تو ہم نے ایئر کا ہم نے حملہ کیا اور پھر ڈرون کا حملہ کیا، تو اس دفعہ ہم سمندر سے آئیں گے، اور پھر مین ایفرٹ ہم راجستھان سے لانچ کریں گے وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ آل آؤٹ ایک یہ جنگ ہوگی۔ ساتھ ہی جو ہے انہوں نے جب وہ افغانستان یا ہمارے اوپر حملہ کر رہا تھا، اس وقت اس کا جو فارن منسٹر تھا وہ ایک ہفتے کی ٹرپ کے اوپر جو ہے وہاں گیا ہوا تھا، اور ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ وہاں لے رہا تھا، اور وہاں سے وہ کیا وہ بکواس وہ یہ کر رہا تھا، اور کشمیر کے بارے میں وہ یہ کیا بات کر رہا تھا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو آج وہ پھر دوبارہ جو ہے 2011 میں اسٹریٹجک پارٹنر بنا، آج پھر وہ اسٹریٹجک پارٹنر اس کا یہ بن گیا ہے کہ ان کے اہداف جو ہیں پاکستان کے خلاف اب جو ہے نا ایک پیج کے بریگیڈیئر صاحب اسٹریٹجک پارٹنر سے زیادہ ہے ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر سعودی عربیہ بھی ہے، اللہ کرے کہ وہ بھی ہمارا امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے۔ بریگیڈیئر صاحب جنرل سالک مدثر ہمارے ساتھ موجود ہیں، صرف ایک سوال میں ان سے کر کے واپس آپ کے پاس آتا ہوں۔
ہاں ब्रिगेडियर साहब आप ही जरा इसका रोशनी डाल दें कि वजीर इतलात हमारे अताउल्लाह तारड़ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, दुश्मन खाम ख्याली में ना रहे, हम अपना दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं, बॉर्डर पर शिकस्त खाने के बाद अब दुश्मन सॉफ्ट टारगेट इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पास जो टारगेट्स हैं जो हमारे पास हैं उनको हम कब स्टार्ट करेंगे? पिछले 24 घंटे में हमने तो देखा कि क़यामत सुग़रा है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को हमलावर होते हैं, यहाँ पे हमारे कचहरी के अंदर आम लोगों के ऊपर हमलावर होते हैं, 3 पुलिस वाले मारे जाते हैं, वकील मारे जाते हैं, सिविलियन मारे जाते हैं, डायरेक्ट हिट करते हैं। हमारे वो जो टारगेट्स हैं वो हम उसके ऊपर कब जाएंगे ब्रिगेडियर साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कि बस आज नहीं तो कल इंशाल्लाह एक्शन शुरू होंगे, क्योंकि जो पिछली जंग जो हमारी इंडिया के साथ भी हुई तो उस वक्त भी जो है DGISPR ने कहा था कि अभी तो हमने सिर्फ 10% अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स दिखाए हैं, ज्यादा तो हमने अभी तक ये बताए ही नहीं है, और वो फिर वक्त आने पे बताएंगे। और उसी लिहाज से हम दोनों को ये बार बार ये खबरदार कर रहे हैं कि हमने आज तक बहुत रेस्ट्रेंट शो की है। जो पिछली जंगें जो हमने ये दोनों के साथ ये लड़ी हैं उसमें हमने रेस्ट्रेंट से काम किया है। अब दोबारा अगर आप ये करोगे तो फिर वो रेस्ट्रेंट वाला फैक्टर ये खत्म हो जाएगा, और हम फिर भरपूर तरीके से जो है ना आपको ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे कि फिर शायद उसके बाद फिर आप अपने पाँव पे जो है खड़े ना हो सको। तो ये जब ये जो वाना वाला जो ये हुआ है और फिर अब इस्लामाबाद वाला हुआ है, और इस्लामाबाद वाले की जो है आप लिंक करें कि इनका जो डेलीगेट में जो आया हुआ था इस्तांबुल में, जो उसने वहाँ बात ये की थी कि हम जो है ना यहाँ बॉम्बिंग करेंगे और तबाह कर देंगे इस्लामाबाद को, तो ये उन्होंने एक किस्म की शुरुआत यहाँ ये रख दी है कि हमारी आउटरीच है और हमारे पास सुसाइड बम्बर हैं कि वो इस्लामाबाद कैपिटल जो कि सेफ सिटी है वहाँ ये पहुंच सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है कि इन्होंने ये जो नरेंद्र मोदी सोच है और ये जो गट्स जोड़ा इनका, इन्होंने कल खुद वहां पर ये धमाका किया नई दिल्ली के अंदर ताकि एक ब्रिज बना लें कि हमारे जी दिल्ली नई दिल्ली के ऊपर हो गया। उसके बाद इन्होंने वो सारा मीडिया उनका पहले यही चीखता रहा कि जनाब ये तो पाकिस्तान ने किया, उसके बाद उनको पता चला नहीं 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 ये तो LPG धमाका हुआ, उन्होंने एक ब्रिज बना लिया और सेम उसी तर्ज का दूसरे दिन हमारे इस्लामाबाद के अंदर वो सेम वही वाला यानी कि ड्रामा बनाते हैं। आपको पता है तकरीबन आधा घंटा हमारे टीवी चैनल्स भी सारी स्क्रीनिंग के ऊपर यही था कि सिलेंडर धमाका हो गया, सिलेंडर धमाका हो गया। उसके बाद कंफर्म हुआ जब हालांकि उसी वक्त साथ सर मिल गया था, वो पता था कंफर्म था कि ये खुद कुछ धमाका है। अब ये सारी अगर ताने बाने मिलाएं तो ये तो सिर्फ बेईमान और गंदी सोच का ये सारा वो था। मतलब उधर तो ये करवाता है इलेक्शन जीतने के लिए और इधर भी करवाता है कि सेम टाइम पे देखो जी इस्लामाबाद भी सेफ नहीं है अगर दिल्ली सेफ नहीं है तो ये तमाम तर चीजें अगर गांठ-चोट मिले तो हम लोग पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं। वहां पर आज वो जो वजीरे दाखिला है हमारे मोहसिन नकवी साहब वो भी आते हैं और वो कहते हैं कि जी ये तो तमाम तर जो सूरत हाल थी ये हमने पूरी तहकीक के बाद ये बात की है कि जी हमने तो कोई तहकीकात से पहले खबर नहीं दी हमारा, क्योंकि हम तो बड़े जिम्मेदार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार हम हैं, लेकिन हम जिम्मेदार के आगे जो है फितरत हिंदुस्तान और उसका भारत का जो गठजोड़ है उसके खिलाफ हम कब एक्शन लेंगे। हम तो उस चीज का वेट कर रहे हैं। यकीन करें पूरी पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान फौज के साथ खड़ी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान फौज के साथ हमारे जो सियासतदान हैं वो कब खड़े होकर ये सारे एक मुसम्मम इरादा करेंगे कि इस सारे गठजोड़ से हमने निपटना है और हमारी अवाम को हमने रिलीफ देना है। जी बिल्कुल सही है, आपके कंसर्न जो है ना बिल्कुल हक बजानब हैं, लेकिन यही तो अफसोस की बात है कि हमारे अंदर जो है जिस तरह की यूनिटी होनी चाहिए वो नहीं है। अब जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो है जो बाहर एक्सटर्नल और इंटरनल एनिमीज जो है सामने आ गए हैं और इतना बड़ा उनका खतरनाक एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ ये आ गया है, तो ये तो यहाँ पर तो कोई शक नहीं किसी को रहना चाहिए था। और वो सब जो है ना एक शीशा पे पिलाई हुई दीवार की तरह सब खड़े हो जाते हैं और फौज के पीछे खड़े होते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो तो ग्राउंड के ऊपर ऐसा है नहीं है। ये हकीकत है कि हमारे अंदर यहाँ पर वो काली भेड़ें जो हैं
बहुत मौजूद हैं जो कि उनको तकवीत दे रही हैं और हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। हाँ ये जी, दुनिया और में यही तो कहीं ऐसा नहीं ब्रिगेडियर हुआ। साहब बार बार आप और मैं यही कहते हैं कि ज्यादा नुकसान तो हमारे अंदर वाले हमें पहुंचा जी रहे हैं, हाँ। चाहे वो सहूलतकार हैं या फिर इस तरह के लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज को प्रमोट करेंगे सारे मामलात को। अभी आप देखें ना, अफगानिस्तान की नेशनल पुलिस एकेडमी में परेड के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ तराने चलाए जाते हैं। ये क्या किसको दे रहे हैं? और ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वो भी यूज हो रहे हैं। इनको नहीं पता कि ये अपनी तबाही का खुद इंतजाम कर रहे हैं। इनको ये अक्ल उनके पास तो है ही नहीं। खैर वो तो एक समझने के छोटे बच्चे हैं जिनको यकीन करें इधर तक भी हमने पहुंचाया। इनको ये नहीं पता कि नेटो फोर्सेस में भेजने के अंदर किरदार किसका था और वो उन्हीं के खिलाफ हो गए। जी बिल्कुल, ये इनको आज नहीं तो कल जरूर समझ आएगी, क्योंकि ये जो समझते नहीं है कि ज्योग्राफिकली उनकी लोकेशन क्या है। वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये ज्योग्राफिकल रियलिटी है, इससे वो निकल नहीं सकते। ये नहीं है कि वो कल उठेंगे तो वो समुद्र के किनारे पे ये बैठे होंगे, ऐसी कोई बात है नहीं है। जो उनके ख्वाब हैं कि जी ये केपी भी हमारा है तो पश्तून बेल्ट ऑफ बलूचिस्तान भी हमारा, ये उनका एक ख्वाब है जो शर्मिंदा नहीं होगा। बल्कि अभी हमें उल्टा नैरेटिव चलाना चाहिए कि हम तो 3 से 4 गुना हमारे पश्तून यहाँ पर ज्यादा हैं, वहाँ तो ये बहुत कम है। तो ये तो हमारी डिमांड होनी चाहिए। पहले भी जो है वो काबुल तक जो है यहाँ से हुकूमत जो है ये होती रही है। तो ये ईस्टर्न अफगानिस्तान, सदर्न अफगानिस्तान, राइट अप टू काबुल, ये तो पाकिस्तान का हिस्सा बना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी जबान मुबारक करें। आसिफ अरुण साहब, मेरा टाइम बिल्कुल हो गया खत्म और मैं इजाजत चाहूंगा। और जिस तरह आपने भी बोला और जैसे जनरल मोइन हैदर उससे पहले बोल के गए, जनरल सालिक मुदस्सिर बोल के गए लेफ्ट, और हमारे साथ ब्रिगेडियर नादर मीर भी मौजूद थे। आप तमाम मेरे बड़ों का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब खसूसी तौर पर आपका शुक्रिया करता हूँ क्योंकि आप वो हैं जिनको हम कहते हैं कि 7 न्यूज का हिस्सा हैं। और ये जो मामलात हैं इंशाअल्लाह ये हम निपटेंगे और पाकिस्तान इस दहशतगर्दी